بات ہے کہ آج طارق بھائی اور اجاز بھائی نے مجھے جو دکھایا مجھے ریئلائز ہوا کہ یہ پروجیکٹ کتنا امپورٹنٹ ہے. ہم جب کافی دور بیٹھے ہوتے ہیں لندن میں, ہمیں پکچرز آتی ہیں, فوٹوز آتی ہیں, بات ہم ہر روز کرتے ہیں کسی نہ کسی سے, اور ہمیں کو پتہ ہے ہمارا یہ ہمارا ایک فرض ہے, ہمارا ایک کام ہے, لیکن جب تک ہم یہاں پہنچتے نہیں ہمیں اس کا ریئل افیکٹ نہیں پتہ لگتا. ہمارے جیلم کے لوگوں کو اتنا فائدہ ہے, اتنا فائدہ ہو رہا ہے الحمدللہ وعلی کل حال. آپ سب کی محنت کا ماشاء اللہ, ہارڈ ورک, سنسیئر ورک اینڈ آنیسٹ ورک, یہ تین چیزیں میں کہوں گا کہ بہت ضروری ہوتی ہیں. ہارڈ, سنسیئر اینڈ آنیسٹ. یہ آپ کرتے رہو تو ہمیں فائدہ کچھ نہ کچھ ہوتا رہے گا انشاءاللہ. تو آپ سب کو تھینک یو سو مچ. آپ لوگ ہارڈ ورک کر رہے ہو, آپ کی محنت وداؤٹ آپ کی محنت ہم نہیں کر سکتے. تو اپلوڈ تو ہم نے بھائی کو دیا ہے, لیکن مجھے ہم سب کو اپلوڈ کرنا چاہیے. کیا ابھی آپ نے شروع کر لیا, آپ نے بجلی کی میں نے باتیں کی ہیں ماشاء اللہ. دو باتیں, وہ باتیں اپنی پھر نہیں آتی, وہ اندر سے آئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو جیلم ایوری باڈی. ماشاء اللہ, آئی وش یو آل دا بیسٹ. جو میرے بھائی نے کہا اس کو میں سپورٹ کرتا ہوں, لیکن میں ایک چیز اور کہنا چاہ رہا ہوں کہ یونٹی سب سے ضروری ہے. یونٹی اگر ہم رکھیں گے نا تو یہ جیلم, لاہور, راولپنڈی کچھ بھی نہیں ہے. اور یونٹی اور پیار محبت سے سب کچھ چلتا ہے. میرے والد صاحب نے یہی سکھایا تھا کہ اکٹھے رہو, ایک دوسرے سے ملو, ایک دوسرے سے پیار کرو اور ایک دوسرے پہ اعتبار کرو. کسی کو بیچ میں نہیں آنے جانا. یہ ہماری فیملی ہے, یہ ہماری ٹیم ہے ماشاء اللہ. اور اللہ سے پہلے سے دعا مانگے اللہ تعالیٰ کہ ہم سارے اکٹھے رہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اتفاق سے رہیں, اکٹھے رہیں, اور لے کے آئیں جو آپ کے بندے ہیں نا, اور لے کے آئیں تاکہ ہماری فیملی بڑھے. لیکن سب نے اتفاق سے رہنا ہے اور پیار سے رہنا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں زندگی میں ان کو بھول جائیں, یہ کچھ بھی نہیں ہے ہمارے لیے. ہماری جو ویژن ہے, ہماری جو آؤٹ لک ہے وہ بہت بڑا ہے. ہم نے اللہ کو خوش کرنا ہے, بس ہمارے لیے یہی ہے خوش. سب کے دل میں اللہ ہے, سب نے اللہ کو خوش کرنا ہے. اگر ہم اللہ کو خوش کر لیں گے ہم کامیاب ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنے لیے تو جیتے ہیں سبھی جہاں میں, ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام میں. یہ جو پودا درشی صاحب نے آج سے 30 سال پہلے لگایا تھا, یہ ابھی پھلدار درخت بن چکا ہے اور اس سے دنیا فیض یاب ہو رہی ہے, اور اس کا اجر اللہ تعالیٰ انہیں دے رہا ہے. اور الحمدللہ جو ان کی بیٹے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ بھرپور تعاون کر رہے ہیں. ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور توفیق دے. اسپیشلی وہ آئے ہیں اور ان اپنے کام کی سب لک آفٹر کرتے ہیں, ویلفیئر کام کی, اور ٹائم دیتے ہیں. یہ کسی کو اللہ تعالیٰ نوازتا ہے اس کام میں, ہر کسی کو توفیق نہیں دیتا. یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ ہمیں بھی کچھ حصہ ڈالنے کی اس نے توفیق دی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم بھی رحمت فاؤنڈیشن کے ساتھ دن رات کام کر رہے ہیں. جو بھی ہماری ڈیوٹی لگاتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ضرور پوری کریں, اور حصہ بھی اپنی طرف سے ڈالیں. یہ بھی اس اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے والدین نے بھی کچھ اس طرح کے مشن شروع کیے ہوئے ہیں جو ہم اوپن تو نہیں کرتے, لیکن الحمدللہ بڑے وسیع پیمانے پر اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. صدقہ کہ مشن ہے ہمارے. اور بھی ایک ہماری تنظیم ہے المصطفیٰ ویلفیئر فاؤنڈیشن, جس کا میں سرپرست ہوں. ایک کمیونٹی سینٹر ہم نے خوار میں بنایا ہے, فری آئی کیمپ وغیرہ بھی لگواتے ہیں. ہم بھی ہر ٹائم کام کرتے رہتے ہیں, اور یہ اسی کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیتا رہتا ہے اچھے کام کرنے کی. اور یہ ہماری خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمت فاؤنڈیشن کو اور ترقی دے. جس طرح یہ لوگوں کی خدمت کر رہی ہے, فلٹریشن پلانٹ میں لگوا کر 40 فلٹریشن پلانٹ ابھی تک جیل میں لگے ہیں اور گردروا میں, اور کڈنی سینٹر کا کام بہت آسان طریقے سے ہو رہا ہے. اور غریب خاندان جو اپنے ڈائلسس نہیں کرا سکتے ان کے لیے بڑی آس کی امید ہے. اور یہ اعزاز ہے رحمت فاؤنڈیشن کو, جس کا ہم بھی جو بندہ کہ ہمارا یہ معاملہ ہے, ہم ان کو فخر سے کہتے ہیں یار رحمت فاؤنڈیشن موجود ہے, آپ کا علاج فری ہو جائے گا, آپ پریشان نہ ہوں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے, خاص عنایت ہے. اللہ تعالیٰ جو بھی ہم سب ساتھی مل کے کام کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم دن رات خدمت خلق کر سکیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. میں رحمت ویلفیئر فاؤنڈیشن کی طرف سے سینئر وائس پریزیڈنٹ. سب سے پہلے طارق صاحب سے اور اجاز صاحب سے ملاقات ہوئی میری تھی 2 سال 2.5 سال پہلے. تو ان کے آ کے ادھر میں نے دیکھا ماشاءاللہ جس طرح کا یہ کام کر رہے تھے,
किडनी के लोग भी आ रहे हैं, वो भी तकरीबन हर वीक के 35 और 40 के तहत ना मरीज़ जो है ये ना फारिग कर रहे थे, डेली डायलिसिस हो रहे हैं। फिर इसके बाद पानी का भी चल रहा है इधर सिस्टम, बहुत अच्छे वाटर प्लांटेशन इन्होंने लगाए हैं, जेलम में भी देखे हैं हमने। फिर इनके साथ मुझे भी फिर तसल्ली हुई कि ना इनके पर काम करना चाहिए। फिर हम और दोस्तों के साथ भी मिलकर इधर काम कर रहे हैं, डोनेशन भी इतना कर रहे हैं छोटा मोटा जिधर से भी हमें मिले। तो जिस तरह तारक मलिक साहब ने फरमाया कि हमें पैसों की जिस वक्त भी कोई कॉल होती है तो हमें इंशाअल्लाह इनके खाना खड़े होते हैं। अल्लाह ताला इनका हमें मुनासिब हो। ये हमारे भाई आए हुए हैं यूके से, ये भी मेरा ख्याल है मुतमईन होंगे हमारी कारकर्दगी को देखकर। ख़ास कर एजाज साहब का मैं बहुत मशहूर हूँ, इन्होंने मैनेजमेंट की भी बड़ी अच्छी लुक आफ्टर कर रहे हैं, अपनी बुक्स मेंटेन कर रहे हैं। हमारे जो FBR के नुमाइंदे हैं वो भी आते हैं, वो भी मैंने खुद बैठ के देखा है कि एक दिन पूरा वो एक बीची निकालते हैं, और इन्होंने ना इस तरह बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है। वो भी बड़े खुश हैं। उन्होंने जिधर इस्लामाबाद से इधर ना वो लेसन लेने आते होते हैं हमारे पास ना एजाज साहब के पास, ताकि हमें भी बताएं किस तरह आपने ये सारा मेंटेन किया हुआ है, हम भी उसी तरह आपकी नकल करते हुए काम करें। तो ये मेरा ख्याल है रहमत वेलफेयर फाउंडेशन का एजाज़ है। हमारे ये जो अच्छे वर्कर हैं इधर सारे के सारे एक दूसरे से बहुत तामुन करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे ये भी डेली OPD हमारी होती है, चलती है सुबह से तकरीबन 2 बजे तक। इसके बाद वीकेंड पे आज जैसे डॉक्टर साहब आए हुए थे इस्लामाबाद से, वो आते हैं मरीज़ों को चेकअप करके फिर आके उनको एडवाइस करते हैं, फिर उनका भी इलाज शुरू हो जाता है। डायलिसिस का बहुत ज़बरदस्त निज़ाम है सब चीज़। तो अब मेरा ख्याल है इतने इजाज़त बोलिए जी, मैं जो गला करनी ऊँची बात है, ऊँची बात है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, सब साथियों को शुक्रिया अदा करते हैं। सब साथी मौके पर पहुँचे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जब भी रहमत वेलफेयर फाउंडेशन को इन साथियों की ज़रूरत होती है, सब बैग कहते हुए सब हाज़िर हो जाते हैं। और ना टाइम को देखते हैं ना पैसे को देखते हैं। तो मैं सब साथी मेरी बहुत इज़्ज़त करते हैं, और जब भी मुझे पैसे की ज़रूरत होती है, अदारे को पैसे की ज़रूरत होती है, अल्हम्दुलिल्लाह इनको कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सिर्फ काम का बताना होता है कि हम ये काम करने लगे हैं, ये प्लांट बनाने लगे हैं, या हमारे हॉस्पिटल के लिए हमें चीज़ की ज़रूरत है। अल्लाह की मेहरबानी से कोई भी ये मेरे साथ साथी जो है इनकार नहीं करता। सब साथी मेरे साथ बहुत आगे चल रहे हैं। एजाज साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, माशाल्लाह दिन रात तो एक किया उन्होंने। तो बाकी जब हम प्लांट बना रहे हैं तो हमें कुछ समझ नहीं लगती हमें पैसे कहाँ से मिलते हैं। अल्लाह की मेहरबानी से ये कुछ थोड़े से पैसे हमारी जेब में आए, बाकी साथी सारे पैसे मिला के प्लांट मुकम्मल कर देते हैं। कि कहीं भी आज तक रहमत वेलफेयर फाउंडेशन को पैसे मांगने की कहीं भी जरूरत नहीं पड़ती। तो अल्लाह की मेहरबानी से अल्लाह कहाँ से हमें पैसे देता है हमें खुद समझ नहीं लगती कि हम थोड़े से पैसे हमारी जेब में आते तो प्लांट हम बना जाते हैं। तो उसके अलावा जो प्लांट बन जाता है उसको निगरानी भी करते हैं। उसके आफ्ताब मुगल है, एजाज साहब है, ये सारे साथी बड़ा ताउन करते हैं। प्लांट बनाने के बाद जो बाकायदा इनको मेंटेन कर रहे हैं, इनके एक टाइम पर फिल्टर चेंज कर रहे हैं, बाकायदा हर प्लांट का पूरा रिकॉर्ड प्लांट के अंदर मौजूद होता है। इसके अलावा तो आज 6 महीने बाद टैंकी वाश कर देते हैं, रोज़ाना 24 घंटे के अंदर बैग वाश करते हैं, और 7 साल के बाद हम नई मशीनरी चेंज कर देते हैं। इसी तरह हॉस्पिटल के अंदर भी है कि कहीं भी आज तक किसी भी मरीज़ को हमने यही नहीं कहा कि भी आप हमें कोई तस्दीक दो भी कहाँ भी आप गरीब हो या अमीर हो। और जो भी आज है हमारे पास जो कि मैं गरीब हूँ, मैं नहीं अफोर्ड कर सकता, हम उनसे कभी भी घरों में जाकर तफ्तीश नहीं करते। उनका इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इलाज करते हैं। और एहसन भाई अंजुम भाई का शुक्रिया अदा करते हैं। मेरे अपने शी साहब के बेटे मेरे भाई भी हैं, और मेरे दोस्त भी हैं, मेरे भाई मेरे अंकल की जगह सब जगह मेरे माशाल्लाह उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, और उन्होंने ही मुझे इस लाइन पर लगाया। मैं उनके बच्चों का सबको शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारे साथ इतना ज़्यादा ताउन कर रहे हैं कि यकीन करें हम सोचते रहते हैं कि हमारे पास पैसा है लगाए किधर। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब और पैसे हो जाते हैं तो हम उसको राशन भी तकसीम करते हैं, रज़ाइयाँ भी तकसीम करते हैं। जो कुछ हमसे हो सकता है इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं, और इंशाल्लाह करते रहेंगे, और साथियों की मदद से करते रहेंगे। हमारे साथी इकबाल साहब हैं मुग़ल आज़म वाले, तो यकीन करें कोई भी बिजली का बिल मिस नहीं होने देते। कहते हैं जो बिल कोई नहीं देगा मेरे पास भेजो, मैं बिल अदा करूँगा। फिर कमर साहब साथी हैं माशाल्लाह, जब भी सपोर्ट की ज़रूरत होती है इंशाल्लाह वो साथ हमारे साथ होते हैं। डॉक्टर फाजिल साहब हैं, इश्तियाक पाल साहब हैं,
माशा मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। सब ने हमारे साथ अदारे के साथ किया तो बहुत ज़्यादा ताउन किया। पिछले दिनों लोडर भी लेके दिया है गरीब बंदे को। अल्हम्दुलिल्लाह जो कोशिश करते हैं इनको रक्षा या कुछ किसी गरीब आदमी देखते रहते हैं। हम हमारे टीम देखती रहती है, किसी को रोज़गार की ज़रूरत है, किसी को लोडर की ज़रूरत है, किसी को रज़ाई की ज़रूरत है, किसी को व्हील चेयर की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह को प्रोवाइड करते हैं। ये अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर सकते जो अल्लाह ने हमारे पे एहसान किए हुए हैं। तो मैं सब साथियों को शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आए, टाइम निकाला और अदारे के लिए सोचते हैं। तो आपका आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी मैं मिर्ज़ा रशीद साहब के जो 2 फर्जंदे अर्जुमंद आए हैं आज जेल में ने दिल की अथाह गहराइयों से हम खुशामदीद कहते हैं। तो इनके बुजुर्गों ने जो पौधा लगाया था आज वो कदावर दरख्त बन गया और उसके साए में सैकड़ों नहीं हज़ारों बंदे दुखी इंसानियत फैज़याब हो रही है। मैं बानी इमरान में से हूँ। ज़माना अमन हो या कुदरती आफात हो, रहमत फाउंडेशन बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। सबसे पहले तो मैं ये बताना पसंद करूँगा कि मिर्ज़ा साहब ने अपना घर डोनेट कर दिया, वक्फ कर दिया। वहाँ आज OPD होती है और सैकड़ों बंदे बाग महल्ला और गिरदोनवा से आके फैज़याब हो रहे हैं। वहाँ क्वालिफाइड MBBS डॉक्टर है जो सुबह से लेकर शाम तक आवाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल है। इसके अलावा जो हमारा जो बहुत बड़ा काम जिसे हम कह सकते हैं वो किडनी केयर सेंटर का है। किडनी केयर सेंटर इस रीजन में जो काम कर रहा है बड़ा साइलेंट काम है और बहुत बेहतर काम है। दुखी इंसानियत के लिए ये बहुत तोहफ़ा है। हमारे यहाँ तकरीबन 50 से भी ज़्यादा प्लस बंदे जो हैं वो डोनेशन पे चलते हैं। जो कुछ देना चाहे किसी से आधे ले लेते हैं, कोई ज़कात का मुस्तहिक है तो ज़कात के पैसों का फार्म दे के उसका इलाज किया जाता है। तो आज मिर्ज़ा साहब के अंजम रशीद साहब और उनके भाई ने भी उधर विज़िट किया है। तो माशाल्लाह वो ख़ुद बताएंगे कि उन्होंने क्या महसूस किया है। इसके अलावा हम रिलीफ के कामों में गुज़िश्ता दिनों आज़ाद कश्मीर में जो ज़ल्ज़ला आया हमारी टीम ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, रिलीफ के काम किए हैं। इससे पहले सुबह सराद में और वो जो पहले ज़ल्ज़ला आया था बहुत बड़ा KPK में बहुत ज़्यादा काम किए हैं और लंदन से जो एक ट्रेला पूरा आया था डोनेशन का वो उधर बांट के आए हैं। तो उम्मीद वासिक है कि हमारी टीम इसी तरह तनदेही से काम करती रहेगी। तो एक फिल्ट्रेशन प्लांट अभी आवाज़ नहीं आ रही, फिर स्टार्ट करो, फिर शुरू आवाज़ को दूर है जी। मैं कंसल्टेंट सर्जन रहमत फाउंडेशन के साथ काम कर रहा हूँ जब से ये बनी है। बहुत सारे मरीज हैं फ्री उनका डायलिसिस होता है तो फोल्डिंग थोड़ी बहुत दे जाते हैं पेशेंट्स को। माशाल्लाह बहुत फ़ायदा हो रहा है इस इलाके में और सबसे बेहतरीन काम हो रहा है रहमत फाउंडेशन का। साथ साथ इन्होंने जो फिल्ट्रेशन प्लांट का काम शुरू किया है वो माशाल्लाह बहुत अच्छा है। अल्लाह और इनको तौफीक दे, लोगों का काम आए। अस्सलाम वालेकुम। मैं रहमत फाउंडेशन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिनकी वजह से हम इस काम में लगे हुए हैं और अल्लाह पाक ने हमें नेकी के तरफ लगाया हुआ है। और मैं तो फॉलो करता हूँ अपने बारदार को जिन्होंने मुझे इधर लगाया ड्यूटी और उनकी वजह से मुझे अल्लाह पाक ने इतनी तौफीक दी है कि मैं फॉलो कर सकूँ। सिलसिला है और मेरी कोशिश होती है कि काम पसंद तरीके से चलता रहे और ये सारी मेहनत मेरे पास कार्य की है जिसमें मुझे इस तरह लगाया हुआ है और उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। रहमत फाउंडेशन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और मिर्ज़ा अब्दुल रशीद साहब को भी मैं याद करता हूँ। अल्लाह ताला उनको फिरदौस में जगह दे क्योंकि सबसे पहले मैं ही उनके पास था। तकरीबन 33 साल में उनके पास रहा हूँ। फिर कुछ ऐसा मैं गायब रहा हूँ, फिर मुझे 5 तारीख ने इधर फिर काम है और अभी तक मैं इसके काम पर लगा हुआ हूँ। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह पाक ने बहुत आसान किया कि हमें इस तरफ चुन लिया और नेकी का काम है। तो जो भी अल्लाह पाक सबको जो है इसका जो भी इसमें साथ आते हैं और चलते हैं काम है तो इंशाल्लाह ये चलता रहेगा। ये जो भी हमारे भाई आए हुए हैं लंदन से अल्लाह पाक इनको भी सेहत अता फरमाए, अल्लाह पाक इन पर फजल फरमाए, करम फरमाए और सब मुश्किल आसान